नाउ वेलकम द स्टूडेंट्स ऑफ +2 बायोलॉजी। आज हम डिस्कस करेंगे पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। और पोलन पिस्टिल का इंटरेक्शन अगर नहीं होता है तो पोलिनेशन फेवरेबल नहीं होती है। अगर पोलिनेशन फेवरेबल नहीं होगी तो इसका जो फेट है फर्दर वो नहीं होगा। जिस बात के लिए ये प्रोसेस होता है वो कंप्लीशन के लिए नहीं जाएगा। और पोलिनेशन कंप्लीट तभी होगी जब वो उसका जो फेट है फर्टिलाइजेशन के लिए जाते हैं, देन इट विल बी कंप्लीट। उससे पहले पोलिनेशन को कंप्लीट होने से पहले जो फर्टिलाइजेशन तक पहुंचता है प्रोसेस, वहां से लेके पोलन्स के शेड ओवर होने से लेके ये जो स्टिग्मा पेग के ऊपर जब ये शेड ओवर होते हैं, इनके बीच का जो इंटरेक्शन होता है वो हम डिस्कस करेंगे, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। अब बात डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहले देयर मे बी ए राइट टाइप ऑफ पोलन्स, देयर मे बी ए रॉन्ग टाइप ऑफ पोलन्स, दे मे फॉल ऑन द रिसेप्टिव सरफेस ऑफ द स्टिग्मा। ये है स्टिग्मा, the receptive surface, if the pollens are of a right type, means they are compatible, they shed over it, it will allow, it will first, what happens, the surface of the stigma are lined with some receptors, they have some chemicals, they have some chemicals which are acting as a receptors, or they recognize the pollen which is of right type, that may be identified or recognized by the chemicals present on the surface of the stigma। तो वो क्या हुए, राइट टाइप के पोलन जो है सबसे पहले, तो दे आर कंपैटिबल, वो ही कंपैटिबल है, वो ही अलाउ किए जाएंगे टू मेक देयर इंटरेक्शन। अब दूसरी अगर हम बात करें, रॉन्ग टाइप ऑफ पोलन्स आर देयर। व्हाट डज इट मीन? किसी दूसरी स्पीसीज के, दूसरे ही प्लांट के पोलन्स यहां पे सेड ओवर हो गए, तो क्या वो भी ये स्टिग्मा का जो सरफेस है, क्या उसको अलाउ कर देगा टू प्रिपेयर देयर ट्यूब्स एंड अलाउ देम टू गेट इनसाइड? नो। The chemical substances lying on the stigma surface as well as the chemicals lying on the pollen surfaces, pollen के surfaces में भी कुछ chemicals होते हैं, वो आपस में interact करते हैं, they are interacting among themselves। जो different किसी और plant का और किसी और species का pollen होगा, that will not show its interaction with the receptive surface of the different type of stigma of plant। डिफरेंट टाइप के प्लांट के साथ वो इंटरेक्ट नहीं करेगा। इट मीन्स इट इज इनकम्पैटिबल। तो वो क्या हुआ, इनकम्पैटिबल हुआ, इनकम्पैटिबल हुआ तो वो रॉन्ग टाइप का पोलन हुआ। इट विल नॉट शो इट्स इंटरेक्शन। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि हमारे पास राइट टाइप का पोलन है, and that is shed over this surface of the stigma। They are received by the receptors of the stigma surface, and the chemicals which are lying on the stigma and chemicals of the pollens, they show their interaction among themselves। वो आपस की एक interaction show करेंगे through which they can recognize them। The interaction of the chemicals lying on the surfaces of the pollens and the chemicals lying on the surfaces of the stigma, both will, what they will do, there will be
acceptance and rejection. There will be acceptance and rejection if it is of same species pollen. अगर ये same species का pollen है, the chemical lying on this surface of this pollen and the chemical lying on the surface of the stigma, they will recognize and they will make a complex. एक complex यहाँ पे बनेगा. If then it is known as a acceptance. Then it is known as a acceptance. They are showing the acceptance. Stigma surface is showing the acceptance. If it is not of same species, then they are not accepting it. Then they are showing the rejection. इतना पता लग गया? Then they are showing the rejection. अब ये बहुत सारी ऐसी अभी रिसर्चेस रिसेंट ऐसी रिसर्चेस में थोड़ा आइडिया लगा कि देयर इज ए acceptance and rejection is there. There is a interaction among the pollen and receptive surface of the stigma. They are showing the dialogues between the pollen and pistil. This is not a talk. कोई ऐसा नहीं है कि उनके बीच में कोई बात हो रही है, but this they are expressing it in the way that there is a dialogue between both pollen as well as the receptive surface of stigma. That is basically chemical nature. They are recognizing their chemical nature, the surface of stigma as well as the surface of pollen. Both recognize, they allow them, and then only the pollen will start to develop the pollen tube from the part, उसको क्या बोलते हैं जहां से ये pollen tube arise करवाता है? germ pore बोलते हैं हम. Any one of the germ pore से वो ट्यूब जो arise करना शुरू करती है, and the stigma surface is now ready to do the path or create the path for the penetration of pollen tube. जो pollen tube है उसको पेनिट्रेट करने के लिए ये पाथ दे देगा. पोलन पिस्टल इंटरेक्शन की हम बात करी, हमने केमिकल नेचर की बात कर ली, एक्सेप्टेंस रिजेक्शन की बात कर ली, हमने ये देख लिया कि देयर इज ए डायलॉग बिटवीन द पोलन एंड पिस्टल. देयर इज ए डायलॉग मींस इंटरेक्शन अमंग द केमिकल्स. सो व्हेन दे आर फाइंडिंग दैट दिस इज द राइट टाइप ऑफ पोलन, and then only they will be accepted, and then that pollen will be allowed to develop the pollen tube through its germ pore. Then this germ pore के through वो जब pollen tube यहाँ पे enter करना शुरू करती है, how it enters, यहाँ से ये enter कैसे होती है, ये मैं आपको ये एक इस डायग्राम के थ्रू दिखाने की कोशिश करता हूँ. ये एक pollen tube है, ये जो एक pollen grain है ऐसे. और अगर आपको डायग्राम थोड़ा सा याद हो तो मैंने आपको सरफेसेस बताए थे जहां पे जर्म पोर्स थे, जहां पे एक्साइन जो थी वो लैक कर रही थी, तो उन सरफेसेस से ही ऐसे पोलन ट्यूब अराइज करना शुरू करती है. ये हमने दिखा रखी है, थोड़ी सी डेवलप हुई, थोड़ी सी, फिर ये काफी ज्यादा डेवलप होके यहां तक एंटर करने की कोशिश कर रही है. इट इज पेनिट्रेटिंग थ्रू द टिश्यूज और द सेल्स ऑफ स्टिग्मा. स्टिग्मा के सेल्स के थ्रू इस तरह से इट इज पासिंग एंड थ्रू द स्टाइल, it pass through the style and then it reaches up to the part of ovary. Through it enters through the another opening that is known as micropyle. माइक्रोपाइल के थ्रू ये यहां से एंट्री कर रही है, और माइक्रोपाइल के थ्रू जब ये एंटर करती है उसके बाद ये अगला यहां पे पार्ट क्या होता है. एक चीज आपने देखी थी, इट कंटेन्स ट्यूब न्यूक्लियस एंड जनरेटिव न्यूक्लियस, जनरेटिव सेल था, एंड दे विल डिवाइड हियर एंड फॉर्म्स टू मेल गैमेटिक न्यूक्लाई. यहां पे इस तरह से ये जब ये पोलन ट्यूब डेवलप हो रही होती है तो जनरेटिव सेल जो है दैट विल डिवाइड एंड फॉर्म द टू मेल गैमेटिक न्यूक्लाई, मेल गैमेटिक न्यूक्लाई, and another one is
वेजिटेटिव सेल, एक वेजिटेटिव सेल जो है ये वाला, ये और ये जनरेटिव सेल जो था वो डिवाइड करता है, और ये फिर पहले ये नॉर्मली कौन सी स्टेज पे रहते हैं, व्हेन दिस पोलन इज फॉलन ऑन द स्टिग्मा दे विल बी रिमेन्ड इन द टू सेल्ड स्टेज, ये आपने पढ़ा था पिछले टॉपिक में, टू सेल्ड स्टेज की फॉर्म में रहते हैं, लेटर दे दैट विल बिकम थ्री सेल्ड स्टेज, थ्री celled stage when it divides, and on the tip of this they contains two male gametic nuclei, male gametic nuclei, and one is vegetative cell. What is happening here? और क्या होता है यहाँ पे, when this tube penetrates through the style and then enters through the ovary, what happens is there within the embryo sac, यहाँ पे आपने देखा था कि there are two cells, synergids and egg cell, they have their finger-like projections. These are filiform apparatus. ये क्या है, filiform apparatus. They will direct the entry of this pollen tube. They help to make the direction right path. They make the help to pass the pollen tube towards the right side, where there is a nuclei of this one and egg cell. So it will direct this towards the egg cell. जो filiform apparatus यहाँ पे होता है, filiform apparatus will direct the entry of pollen tube towards the which part? Towards the egg cell. And behind it there is a vegetative cell. आपको यहां तक पता लग गया, पोलन पिस्टल का इंटरेक्शन देख लिया आपने, बोलता है इट इज ए द इंटरेक्शन ऑफ दिस पोलन एंड पिस्टल इज ए वेरी डायनेमिक प्रोसेस थ्रू विच इट हैपन्स. आपने देखा एक्सेप्टेंस होने के बाद दे डेवलप द पोलन ट्यूब पेनिट्रेट थ्रू द स्टिग्मा सेल्स, यहां से पेनिट्रेट की, स्टाइल के थ्रू पेनिट्रेट होती हुई यहां से एंट्री करती हुई ये एंटर करी थ्रू माइक्रोपाइप टूवर्ड्स द एम्ब्रियो सैक. और एम्ब्रियो सैक में भी आपने देखा कि सिनर्जिड्स है यहाँ पे, वो जो सिनर्जिड्स होते हैं ये सिनर्जिड्स कंटेन व्हाट, दीज सिनर्जिड्स कंटेन फिलिफॉर्म apparatus, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, प्रोसेसेस होती हैं, दे विल डायरेक्ट द एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब टूवर्ड्स द egg cell. That led the male gametic nuclei to move towards the egg cell. So the next process can be started there. अगला प्रोसेस इसका फर्टिलाइजेशन का होता है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे. दिस इज सिंपली ए पोलन पिस्टल इंटरेक्शन. आई होप कि आपको ये क्लियर पता लग गया होगा. इसके साथ इसका हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. नेक्स्ट हम देखेंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन. आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, उसकी नीड क्यों है, ये हम देखेंगे. हाइब्रिडाइज करने का मतलब है आर्टिफिशियली, मतलब लैब में हम ये ऐसा काम करेंगे या बाहर प्रैक्टिकली फील्ड में भी हम ऐसा काम कर सकते हैं. हाइब्रिडाइज करने का मतलब है जो डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक के लिए हमें कोई भी चीज चाहिए तो वो हम क्या करेंगे, बाहर ही उसको कहीं ना कहीं पोलिनेट करेंगे. पोलिनेट करने के बाद जो भी हमें लगता है कि उसके हम इस तरह से उसको हाइब्रिडाइज करके प्रिपेयर करेंगे. तो किस तरह से ये कर पाएंगे हम, लेट अस टुक द एग्जांपल ऑफ देयर इज ए प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन अकरिंग इन द टू वेज. नंबर वन इज किस तरह से होता है. ये हमारे पास कोई फ्लावर है,
स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ये एंथर्स है हमारे पास, और ये स्टिग्मा स्टाइल, ये इस तरह से। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें लगता है कि कोई हमारे पास दूसरा कोई ऐसा प्लांट है जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बहुत अच्छे लगते हैं। वो एक उसका जो अगर कोई फ्रूट है तो हम ये मान के चल सकते हैं कि उसका जो है जो फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा है, और वो डिजीज फ्री है, कॉम्पैक्ट फ्रूट है, और काफ़ी अच्छा उसका साइज भी है। और ये हम क्या करना चाहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करना चाहते हैं। जो हमारे पास कोई अवेलेबल कोई फ्रूट है उसका साइज थोड़ा छोटा है, इतनी अच्छी खुशबू भी नहीं है, और वो ये हम इसमें इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां से हमने क्या करना, एंथर्स लेने उसके दूसरे किसी वैरायटी के प्लांट के, और सबसे पहले जिसके साथ, जिस प्लांट के साथ हमें ये करना है, तो वी हैव टू मेक कट ऑन दिस विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप्स, और इसको रिमूव कर देना यहां से। इसको क्या करेंगे हम, वी रिमूव इट विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप। ये कट करके हमने इसको बाहर निकाल दिया। क्यों किया ऐसा, ये करेंगे जब तक ये मैच्योर नहीं होंगे उससे पहले ये प्रोसेस करेंगे, ताकि इसके पोलन जो है वो यहां पे ना सेट ओवर हो जाए। क्लियर, इसको सेव करने के लिए पहली बात आपको ये पता लग रही है, मैंने क्या किया, आई रिमूव द मेल पार्ट, एंड्रोशियम, एंड्रोशियम पार्ट को मैंने फोर्सेप की हेल्प से यहां से रिमूव कर दिया। नाउ ओनली द फीमेल पार्ट इज सेव्ड हियर। तो उसको ऐसा करने के लिए मुझे एक और यहां पे कवरिंग देनी पड़ेगी इसकी, ये इस तरह से बाहर से एक बटर पेपर लेना है मेरे को। आई हैव टू टूक द बटर पेपर एंड कवर इट फ्रॉम द आउटसाइड टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एंट्री, ताकि कोई और दूसरा पोलन यहां पे ना गिर जाए और हमारे इस प्रोसेस को खत्म ना कर दे। यहां तक पता लग गया। द रिमूवल ऑफ दिस एंड्रोशियम और द मेल पार्ट फ्रॉम दिस फ्लावर इज नोन एज इमेस्कुलेशन। इसको क्या बोलते हैं, इमेस्कुलेशन बोलते हैं। समझ आ गई बात। और ये जो मैंने बाहर से बटर पेपर लगा दिया ताकि इजीली अंदर का प्रोसेस चलता रहेगा, इसका नरिशमेंट वगैरह ठीक रहेगा, लाइट भी पड़ती रहेगी। इस प्रोसेस को करने के बाद मैंने इसको टाई कर दिया, बांध दिया। दिस इज नोन एज बैगिंग। क्या कर दिया मैंने, इसको बैगिंग कर दी। यहां तक पता लग गया। नाउ व्हाट आई विल डू, जो वैरायटी के कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे चाहिए थे इस प्रोसेस को करने के लिए, टू मेक द इंप्रूवमेंट, कोई इंप्रूवमेंट मुझे चाहिए, क्रॉप की इंप्रूवमेंट हो सकती है, किसी भी तरह की इंप्रूवमेंट हो सकती है, चाहे मैं फ्रूट की बात करूं। I have to make the cut and bring this pollen or the male part, and then what to do? Now I will open this butter paper and remove the butter paper and dust over this pollen from the anthers। जो जिस वैरायटी के मैं लेके आना चाहता था उसको मैंने यहाँ पे डस्ट ओवर कर दिया। यहां से यहां पे मैंने इसकी डस्टिंग कर दी। क्लियर। ऐसा करने के बाद फिर से मैं इसको क्या कर दूंगा, रैप कर दूंगा। और ये जो प्रोसेस मैंने किया, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें मैंने एंथर्स वो वैरायटी के लिए जिस वैरायटी के कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे चाहिए थे, और हमने जो मेरे को जिस प्लांट के साथ करना था उसका फीमेल पार्ट ही मैंने यहां पे रखा था, उसका मेल पार्ट मैंने हटा दिया था। जब मैच्योर होने से पहले, जब एंथर बन रहे होते उससे मैच्योर होने से पहले ही मैंने उसको निकाल दिया था और उसको रैप करने के बाद बंद कर दिया था। उसके बाद मैंने वो मैच्योर होने के बाद एंथर्स लाया, जिस वैरायटी के मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए उसकी मैंने इसके ऊपर डस्टिंग कर दी, और अब इसको बाहर से फिर से रैप कर दिया, कहीं गलती से और कोई पोलन ना सेम टाइम पे कोई गिर जाए यहाँ पे। नाउ अगेन इट विल बी
tied. Again the bagging will be done. This process is known as hybridization. इसको hybridization बोल दिया. इसके बाद जो pollen tubes बनेंगी और pollen tube बनने के बाद जब ये fertilization का concept 2, 4, 5, 7 दिनों के अंदर हो जाएगा, then I will remove it. उसके बाद इसको मैं खोल सकता हूँ. ये जो प्रोसेस मैंने किया, खुद किया, बाहर किया, this is known as artificially done. Artificial process. और ये जो किया, दिस इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन द डिफरेंट प्लांट्स. दो अलग अलग तरह के प्लांट्स के साथ जो क्रॉस किया मैंने, इस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं. और जब हम खुद कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, विच कैन ब्रिंग द टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स व्हाट वी वांट. जिस तरह के कैरेक्टरिस्टिक हमें चाहिए इंप्रूवमेंट के लिए, किसी भी तरह के इंप्रूवमेंट के लिए, वो कैरेक्टरिस्टिक्स हम इस तरह से इस प्रोसेस को अंजाम इस तरह से देते हैं. एंड दिस इज बेसिकली नोन एज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन विच इज अकरिंग बाय द टू वेज, इमेस्कुलेशन एंड बैगिंग. और बैगिंग मैंने यहाँ किससे की थी? बटर पेपर से की थी, जो कि लाइट को भी पेनिट्रेट होने देता है और अंदर जो नरिशमेंट है वो भी इसको मिलता रहता है. और जो रिक्वायर्ड था मैंने वहां से लेके आया था और उसकी पोलन की यहाँ पे मैंने टेस्टिंग करी थी. And this process is known as artificial hybridization. In such a way, we can improve the varieties what we want to do. I hope कि आपको यहाँ तक पता लग गया होगा. Thank you for watching.